Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Khurram Ijaz Chandia with another lecture, Introduction to Management. The chapter we are studying is Stakeholder Ethics and Corporate Social Responsibility. In our previous lecture, we studied different concepts and theories related to ethics, and today's topic of discussion is social responsibility. In addition to recognizing stakeholders and their claims, acting legally and behaving ethically, many believes that business should act in a socially responsible manner. For a business firm, social responsibility is the sense of obligation on the part of managers to build certain social criteria into their business decision making. This concept implies that when manager within a business evaluate decision, there should be a presumption in favor of adopting course of action that enhance the welfare of society at large. The goals selected are often quite specific to enhance the welfare of communities in which business is based, improve the environment, or raise the education level of employees. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कंसेप्ट है, और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट हमें कहता है कि बिज़नेस जो एक कम्युनिटी के अंदर कोई बिज़नेस कर रहा है और वहाँ पे मैनेजर अपने डेली बेसिस के या कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहा है, तो उसके डिसीजंस जो हैं वो कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए फ़ायदा मंद होने चाहिए, और बिज़नेस जो है सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ऑफ़र करे जिससे कम्युनिटी का भला हो, कम्युनिटी की बेहतरी हो। अब वो क्या काम हो सकते हैं? आपने कम्युनिटी की वेलफेयर करनी है जिस कम्युनिटी में आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा। आप इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करें या अपने एम्प्लॉयज़ का लेवल ऑफ़ एजुकेशन रेज़ करने की कोशिश करें, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। Arguments for social responsibility. In its purest form, social responsibility can be supported for its own sake simply because it is the right way for business to behave. Advocates of this approach assert that businesses, and particularly large successful businesses, need to give something back to society that has made their success possible. More pragmatic and arguments that socially responsible behavior is in the firm's self-interest and can lead to better financial performance. Economic actions have social consequences affecting a company's outside stakeholders. Therefore, to retain the support of these stakeholders, the company must take those social consequences into account when formulating strategies, otherwise, it may generate ill will and opposition. For example, if community perceives a company as having an adverse impact on local environment, it may block companies' attempt to build new facilities in area. अब सपोज़ उसने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ऑथर ने देने की कोशिश की है कि आपने सोसाइटी का या कम्युनिटी का ख्याल रखना होता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप सोसाइटी या कम्युनिटी का ख्याल नहीं कर रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो कोई प्रोडक्शन यूनिट है वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, तो आपको शायद अपनी उस कंपनी को एक्सपेंशन अगर करना चाहती है, नया प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहती है, तो शायद उसको रोक दिया जाए, उस इलाके के लोगों की तरफ से रोक दिया जाए या हुकूमत की तरफ से रोक दिया जाए, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ सकते हैं कंपनी को। द pragmatic approach you might realize is an extension of stakeholder management approach that we discussed earlier in this chapter. In contrast, the purer approach emphasizing social responsibility of successful businesses goes beyond a pragmatic stakeholder management approach to educate that business should take actions to enhance the welfare of society that exceed what is necessary to maintain the support of key external stakeholders. For example, a business with a strong sense of social responsibility may invest in the community where it is located beyond the level necessary to maintain community support. BP stands for British Petroleum.
is one of the world's largest oil companies, is the good example of business that has taken the notion of social responsibility to heart in recent years. British Petroleum was the first oil company to accept that greenhouse gas emissions may be changing the world's climate in unpredictable and potentially harmful ways. British Petroleum embraced a goal of doing no harm to environment, a difficult goal for the oil company because its products are a primary source of greenhouse gas emissions. Since the late 90s, British Petroleum has invested in development of technologies designed to reduce emission of greenhouse gases from oil burning electric plants and from automobiles. In 1998, BP set the target of reducing greenhouse gas emissions from its own operations by 10% from 1990 baseline level by 2010. The company actually met this target in 2001, 9 years ahead of schedule. Moreover, savings associated with greater fuel efficiency and reduction in amount of gas flared or uh, vented from its facilities achieved this rejection without raising costs. अब वो वहाँ पे उसने ब्रिटिश पेट्रोलियम की एग्जांपल दी है. ब्रिटिश पेट्रोलियम बिजनेस ही ऐसा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं. तो उन्होंने टारगेट किया कि हमने एक पॉलिसी स्टार्ट की उन्होंने 1990 में कि हम 2010 तक जो अपना वो कार्बन एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, वो कम करेंगे. लेकिन उन्होंने वो टारगेट 2009 की बजाय 2001 में ही अचीव कर लिया, जिसके उन्हें काफ़ी सारे फ़ायदे मिले. उनका कॉस्ट्स कम हो गई, उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई और भी इस तरह के जो भी टेक्निकल फ़ायदे थे वो उन्हें मिले. British Petroleum has embraced its responsibility to the communities in which it does business and has invested in trying to improve quality of life in those communities. In Algeria, for example, where British Petroleum is the largest foreign oil enterprise, the company has social investment program that, among other things, has invested in facilities to improve the quality of local water supply. In desert community of Insala, where groundwater supplies of drinking water were contaminated with salt, British Petroleum has built 4 desalination plants so that all the town's 27,000 inhabitants can have access to 20 liters of pure water a day for drinking and cooking. Nor is this an isolated case where British Petroleum does business. The company has established social investment programs because the company believes this is the right thing to do, and because it is in British Petroleum's long-term interest to take actions that enhance its reputation. If British Petroleum is seen as a good corporate citizen in communities where it does business, this will probably make easier for BP to expand its operations in those communities in the future or to enter other communities. फिर एक और एग्जांपल दी है. अल्जीरिया एक कंट्री है मिडल ईस्ट का या अफ्रीका के करीब एक मुल्क है. वहाँ पे ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो अपना बिज़नेस करती है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है. तो वहाँ पे एक लोकेलिटी में उन्होंने वहाँ पे पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं था, तो उस कंपनी ने वहाँ पे डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए ताकि वो जो भी लोग हैं, कम्युनिटी है, हर बंदे को 20 लीटर पानी अवेलेबल हो ड्रिंकिंग के लिए या कुकिंग के लिए. और उसका फ़ायदा क्या हुआ? एक तो कंपनी की रिप्यूट अच्छी हुई और उसके बाद कंपनी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को फ़ायदा पहुंचा. अब अगर कंपनी की रिप्यूट अच्छी होगी कॉरपोरेट सर्कल्स में, तो अगर कल को किसी और मुल्क में वो जाके अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहेगी तो उसे वहाँ पे कम हर्डल्स फेस करना पड़ेंगी, क्योंकि उसकी जो रिप्यूट है कम्युनिटी में वो बेहतर है या वो अच्छी है. The Friedman doctrine. Some people argue that business firm has no obligation to pursue social goal. Nobel laureate Milton Friedman, for one, instead insists that social responsibility considerations should not enter the business decision process. There is one and only one social responsibility of business: to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stay within the rules of game.
which is to say that it engage in open and free competition without deception or fraud. Friedman explicitly rejects the idea that business should undertake social expenditures beyond those mandated by law and requirement for the efficient running of business. For example, he suggests that improving working condition beyond the level required by law and necessary to maximize employee profitability will reduce profits and is therefore not appropriate. His belief is that firm should maximize its profits because that is how to maximize the return that accrue to the owners of the firm, its shareholders. Its shareholders wish to use the proceeds to make social investments. That is their right according to Friedman, but managers of the firm should not make that decision for them. Although Friedman's position is well stated, he would probably not object to the social expenditures by business that have positive spillover effect for the firm. For example, British Petroleum clearly drives economic benefits from the positive publicity and goodwill that result from its social investment. Beyond this, it can be argued that socially responsible behavior of businesses can change society for better. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि एक मिल्टन फ्राइडमैन हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं, स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं। वो कहते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिज़नेस की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करें। इसके अलावा किसी बिज़नेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और मज़ीद फ्राइडमैन का कहना ये है या मानना ये है, या उसकी थ्योरी कहती है कि फ़र्म को, किसी भी फ़र्म को उतना ही करना चाहिए जितना कि कानून, एक मुल्क का लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस उससे डिमांड करते हैं। अगर एक चीज़ की डिमांड रूल्स या रेगुलेशंस नहीं करते तो फिर उसको उन चीज़ों पे ख़र्चा करने की, पैसा लगाने की, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर उस पर ख़र्चा वो करेगी, उस पर पैसे लगाएगी, तो उसके प्रॉफिट्स बिजनेसेस के कम होते चले जाएंगे। ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और फिर ये अगले जो लास्ट पैराग्राफ को मैं रीड करने लगा हूँ, उसमें वो कहता है कि जब भी कोई फर्म अपना इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ब्रिटिश पेट्रोलियम की एग्जांपल दी है, फ्राइडमैन की बातें अपनी जगह ठीक, लेकिन जब ब्रिटिश पेट्रोलियम ने एक कम्युनिटी के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए, वहाँ पे लोगों को साफ़ पानी मुहैया किया, तो उसके बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हुए होंगे जिसका उसने फ़ायदा उठाया होगा। तो फिर अगर आपको उन इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं तो फिर आपको कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे, अपनी इंटरेस्ट शो करेंगे, अपना कंसर्न शो करेंगे टूवर्ड्स कम्युनिटी, टूवर्ड्स सोसाइटी, तो ज़ाहिर सी बात है आप वहाँ पे बेहतर तरीके से जो है उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प कर सकेंगे जिनके थ्रू आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपका कंसेप्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस करना है, जो चैप्टर 5 है हमारा, वो है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग क्या है? As the Intel story illustrates, planning is the primary function of management. जो प्लानिंग है वो एक प्राइमरी या पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। जो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला काम आप करते हैं वो प्लानिंग होती है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय मैनेजर सेलेक्ट गोल्स, choose actions to attain those goals, allocate responsibility for implementing action to specific individuals or unit, measure the success of actions by comparing actual results against goals, and revise plans accordingly. प्लानिंग में आप क्या करते हैं? मैनेजर्स जो हैं गोल्स सेलेक्ट करते हैं, यानी कि एक मैनेजर, मैं काम करता हूँ तो मेरा गोल क्या है, उसके बाद उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ एक्शंस बनाते हैं कि ये काम किए जाएंगे, ये एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे तो गोल्स अचीव हो सकेंगे। उसके बाद
एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंडिविजुअल या एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एक बिजनेस के अंदर, और उसके बाद मेजर द सक्सेस ऑफ एक्शंस बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट द गोल, कि अब आपने कंपैरिजन करना है कि आपके एक्चुअल गोल्स और जो आपने गोल्स अचीव किए हैं उनमें डिफरेंस क्या है, और उसके बाद रिवाइज प्लान अकॉर्डिंगली, तो आप अपने प्लान्स को रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये प्लानिंग आप कहलाती है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। जो प्लानिंग है उसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, एक फॉर्मल प्रोसेस है, अहम फैसले लेने के प्रोसेस को आप प्लानिंग का नाम देते हैं। ए प्लान कैन प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कोई भी प्लान जो है ये प्लानिंग प्लान से निकला है। प्लान क्या होता है? प्लान एक डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन को। इट टेल्स एवरीबॉडी व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ट्राइंग टू डू, व्हाट इट्स प्रायोरिटीज़ आर, वेयर इट इज़ गोइंग एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट देयर। प्लान क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है, इसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये कंपनी पहुंचना किधर चाहती है और अपनी मंजिल तक ये कंपनी या बिज़नेस कैसे पहुंचेगा। It is a process of marshalling resources and deciding who should do what for allocating roles, responsibilities, and money. It is also a control mechanism. By comparing actual results against the plan, managers can determine whether the organization is attaining its goal and making adjustments if required. तो यहाँ पे आप इस प्लानिंग के प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलोकेट करते हैं, रोल्स एलोकेट करते हैं कि किसने क्या काम है, कौन से रिसोर्सेज कौन कौन सा बंदा हैंडल करेगा, और उसके बाद आप एक्चुअल रिज़ल्ट्स और अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स या जो गोल्स हैं उनको कंपेयर करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आया कंपनी या फर्म अपना गोल या अपना मकसद अचीव भी कर सकी है या नहीं कर सकी। For example, as a part of his plan, Ortolini decided to reorganize Intel into 4 market-focused divisions, allocating specific roles, responsibilities, and resources to each division. One division will develop the platform for corporate computers, another for home computers, another for laptop computers, and fourth for computers targeted at health services. Going forward, Ortolini can compare the performance of each division against its specific goals and make necessary adjustments. If the top manager of the laptop computer division brilliantly executes the plan, she may receive a big performance bonus or become leading candidate to replace Ortolini when he retires. If the home computer division stumbles in its effort to develop a platform, Ortolini may allocate more engineering resources to the unit while simultaneously altering the senior management of the unit. In this way, plan becomes control mechanism for managing a बिजनेस। अब वो कहता है कि प्लान जो है ये कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म होता है बिज़नेस का। कैसे? उसने एग्जांपल दी, एक मशहूर ज़माना आईटी कंपनी है इंटेल। इंटेल के प्रोसेसर्स जो हैं ये हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमारी बुक या हमारा ऑथर जो है वो हमें एग्जांपल दे रहा है कि इंटेल के अंदर एक मैनेजर का उन्होंने नाम ऑर्टेले लिखा है कि उसने अपनी कंपनी को 4 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया और उन 4 डिवीजन्स को 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी। एक डिवीज़न का काम जो है वो ऑफिस कंप्यूटर्स बनाना था, दूसरे डिवीज़न का काम होम कंप्यूटर्स बनाना था, तीसरे डिवीज़न का काम लैपटॉप कंप्यूटर्स बनाना था, और चौथे डिवीज़न का काम जो हेल्थ सर्विसेज या हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ होते हैं वो बनाना था। तो ऐसा करने का मकसद ये था कि हर डिवीज़न की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता रहे और उनको मैनेज किया जाता रहे। अब अगर किसी डिवीज़न का हेड अच्छा काम कर रहा होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, खुल जाएंगे, और वो बंदा जो है आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर कोई यूनिट जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा होगा, उस अपने टारगेट्स या गोल्स को अचीव नहीं कर रहा होगा,
तो इन दैट केस जो मैनेजर है, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो उस यूनिट को ज़्यादा रिसोर्सेज देगी और उसको एनालाइज करती रहेगी कि ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लानिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, the plans managers formulate within an organization can be differentiated by the levels of organization to which the plans apply. Strategic or operational plans, the time horizon of plans, short term or long term, the number of times the plan are used, standing plans versus single use plan, and contingent nature of plans. We consider each of these dimensions in turn. Levels of planning, प्लानिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। प्लानिंग इज़ परफॉर्म्ड एट मल्टीपल लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल्स पे प्लानिंग हो रही होती है। प्लानिंग स्टार्ट्स एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद स्ट्रेटेजिक प्लान विच आउटलाइन द मेजर गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and the organization wide strategies for attaining those goals. In complex organizations such as large diversified corporation with multiple business units, there may be 3 layers of strategic planning. अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो उस पहली चीज़ है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से मुराद एक ऐसा प्लान है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मेजर गोल्स को आइडेंटिफाई करता है कि कंपनी, एक कॉरपोरेट सेक्टर जो है, उसके मेजर गोल्स क्या हैं और उन गोल्स को अचीव कैसे किया जाएगा। अच्छा, गोल्स ऐसे नहीं होते कि जब हम स्ट्रेटेजिक प्लान की बात कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर गोल की बात कर रहे हैं, तो उससे मुराद ये नहीं है कि मैंने आज शाम को क्या करना है। मेरी कंपनी 5 साल बाद 2025 में कहाँ होगी, 2030 में कहाँ होगी। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक प्लान की, तो ऐसा गोल जो आपके मेजर गोल्स को डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के, और वो स्ट्रेटजीज जिनसे आप उन गोल्स को अचीव कर सकें, और ये लॉन्ग टर्म होती हैं। अब स्ट्रेटजिक प्लानिंग की 3 लेयर्स हैं जी। पहली लेयर क्या है? प्लानिंग एट कॉरपोरेट लेवल फोकसेस ऑन कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। Plans made at business level focus on business level strategy, and plan done at operational level focus on operational strategy. 3 लेयर्स कौन सी हैं प्लानिंग की या स्ट्रेटजी मेकिंग की? एक कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है, एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है, और एक ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी होती है। हम वन बाय वन ये देख लेते हैं कि कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है, और ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है। Corporate level strategy is concerned with deciding which industries a firm should compete in and how the firm should enter or exit industries. Business level strategy is concerned with deciding how the firm should compete in industries in which it has elected to participate. Operating strategy is concerned with actions that should be taken at the level of individual functions such as production, logistics, research and development, sales to support business level strategy. Normally, an operating plan is embedded within business level of strategic plan, and in turn it is embedded within the corporate level strategy. अब corporate level strategy क्या है? जिसमें ऊपर की planning होती है। Corporate level strategy is concerned with deciding which industries a firm should compete in and how the firm should enter and exit industry. एक business है, वो एक इंडस्ट्री क्या होती है? टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री है, यानी कि एक सेक्टर है। कॉटन या टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्री है, सर्विसेज इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है। तो ये है कि बिज़नेस ने कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है, कौन सी इंडस्ट्री में काम नहीं करना, कब कहाँ पे एंटर होना है। Business level strategy concerned with deciding how firm should compete in business in which it has elected to participate. एक बिजनेस कहता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसकी इंडस्ट्री में काम करूँगा, बेवरेज इंडस्ट्री में। तो अब बीवरेज इंडस्ट्री में कोल्ड ड्रिंक बनाना है, तो मैंने उसमें compete कैसे करना है। बेवरेजेस में तो 6-7 कंपनियां काम कर रही हैं,
तो मेरी कंपनी जो है वो कैसे compete करेगी अपने competitors के साथ, क्या क्या काम करेगी कि मैं। और फिर उसके बाद ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है कि कंपनी के अंदर प्रोडक्शन कैसे होगी, लॉजिस्टिक्स के मामलात कैसे देखे जाएंगे, सेल्स के मामलात कैसे देखे जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामलात कैसे देखे जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी या ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजी में देखी जाती हैं। उसके बाद ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी में जो है वो आप ऑपरेटिंग प्लान्स बनाते हैं। जो ऑपरेटिंग प्लान्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल फंक्शंस हैं ये। जैसे मैंने आपको कहा ना, प्रोडक्शन एक इंडिविजुअल फंक्शन है। चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप बेवरेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रोडक्शन एक काम है, लॉजिस्टिक्स एक काम है, सप्लाई चेन एक फंक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक और फंक्शन है, सेल्स एक फंक्शन है। तो हर मतलब जब आप हर फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक गोल बनाएंगे, कुछ एक्शंस बनाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे कि एक्स पर्सन जो है वो प्रोडक्शन यूनिट को देखेगा, वाई बंदा जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट को देखेगा, और इनके टारगेट्स क्या क्या हैं। सेल्स वाले का टारगेट होगा कि अगले साल 2022 में सेल्स को 10% इंक्रीज़ करना है। लॉजिस्टिक्स वालों ने अपनी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों ने कोई नया फार्मूला, कोई नया केमिकल लेके आना है ताकि आप जो है वो बेहतर प्रोडक्ट बना सकें। तो ऐसा प्लान होता है जिसमें हर इंडिविजुअल फंक्शन के लिए गोल स्पेसिफाई किया जाता है, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस बनाए जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। तो ये ऑपरेटिंग प्लान्स होते हैं। उसके बाद यूनिट प्लान्स होते हैं। यूनिट प्लान्स क्या होते हैं? यूनिट प्लान्स डिपार्टमेंट के अंदर जो फंक्शन होने हैं, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट है उसके अंदर भी तो फंक्शन होना है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी तो फंक्शन होना है ना, सेल डिपार्टमेंट के अंदर भी तो फंक्शन होना है, उसके अलावा लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन के अंदर भी तो फंक्शन होना है। तो उसमें जो इंडिविजुअल्स या टीम्स काम कर रही हैं, तो उस टीम लेवल पे जो है वो कैसे काम होना है, ये यूनिट प्लान है। इसको अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में देखें तो ऑपरेशनल प्लान जो है ये डिपार्टमेंटल लेवल पे बनेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज या डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के क्या गोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर मैं या मेरी टीम ने क्या काम करना है, इसे आप यूनिट लेवल प्लान कह लें। उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या बजट्स मिलेंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उन्होंने क्या करना होगा। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हमने 3 लेवल्स को यहाँ पे स्टडी कर लिया है। एक कॉरपोरेट लेवल प्लान्स हैं, फिर बिजनेस लेवल प्लान्स हैं, और फिर ऑपरेटिंग प्लान्स हैं। और ऑपरेटिंग प्लान्स के अंदर यूनिट प्लान्स होते हैं और ऑपरेटिंग प्लान्स होते हैं। Planning horizons. The planning horizon refer to how far out a plan is meant to apply. Most strategic plans, whether at business or corporate level, are multi-year plans. They are meant to stay in place for several years. A 3 to 5 horizon is typical. If successful, Paul Ortolini plan for Intel, which we discussed earlier, will drive strategy at the company for years to come. Indeed, it would be dangerous to change strategic plan frequently. This would confuse important stakeholders such as employees, suppliers, customers, investors about the direction of organization, and they might lose confidence in top management. अब प्लानिंग होराइजन मीन कि आप जो वो प्लान बना रहे हैं, वो जो स्ट्रेटेजिक प्लान 3 लेवल पे, कॉरपोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे और ऑपरेशनल लेवल पे, वो आप कितने अरसे के लिए बना रहे हैं। अब आम तौर पे, अभी मैंने 5 मिनट पहले एक बात बताई कि जब हम वर्ड स्ट्रेटजी का बना कहते हैं तो स्ट्रेटजी मीन कि वो एक्शन जो अगले 5 सालों में लिए जाएंगे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में लिए जाएंगे। तो आम तौर पे जो प्लानिंग की जाती है या जो स्ट्रेटजिक प्लान्स बनाए जाते हैं वो ज़्यादा अरसे के लिए, 5 सालों के लिए टिपिकली उनका प्लान होता है। और अगर एक फार्म हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या हर साल के बाद अपने प्लान्स को बदल लेती है,
तो फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एम्प्लॉयज़ के अंदर, सप्लायर्स के अंदर, कस्टमर्स के अंदर और इन्वेस्टर्स के अंदर कि ये क्या है, ये तो हर गुजरते दिन के साथ अपने प्लान्स को बदल लेते हैं। तो उनका टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो एक्शन है वो लूज़ हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गई प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई। कुछ फार्म के अंदर टेक्टिकल प्लान्स होते हैं। टेक्टिकल प्लान्स जो हैं ये शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, हम रीड भी कर लेते हैं। देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू जनरलाइजेशन दैट स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर लॉन्ग टर्म। Organizations sometimes adopt short-term plan to address specific transitory opportunities or threats. Such short-term plans are known as tactical plans, which are the plans for pursuing transitory competitive tactics. यानी कि कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी आ गई या कोई थ्रेट आने वाला है, तो उसको हैंडल करने के लिए आप वक्ती तौर पे कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आप उससे बेनिफिट उठा सकें या थ्रेट को अवॉइड कर सकें वक्त के। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसे हम कहते हैं टेक्टिकल प्लान्स। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आप लोग इसको रीड आउट कर लें, कोई क्वेश्चंस हों तो मेरे से पूछ लें अपने सेशन में। और हम, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।